Hello and welcome all to this another session of Stroke Support India, a Zoom open house. Sachin ji आज हमारे साथ हैं, Sachin Chandekar, and we'll be sharing his journey and his learnings और उनका अनुभव and experiences. He has recovered well, and I'm sure he has a lot of learnings and experiences to share. Hetal will be hosting the meeting. So over to you, Hetal ji. And of course, as usual, after some time, we can have a question answer session so as to make it more interactive. Thank you very much, Sachin ji, again for joining in, and Hetal for everyone's efforts also for joining in. Over to you, Hetal. Thank you. Yes. Hello. Yes, am I audible? Yeah, we can hear you better. Yeah. So first of all, thanks to Wilson ji for suggesting Sachin ji's name. And thanks Sachin ji for agreeing at such short notice to do this session. We are really very proud of everyone on the group, no matter how much progress. So everybody's journey is different and everybody takes their own time depending on the stage at which the stroke was detected and what treatment was made available. So I wanted to reiterate that we need to support each other and draw inspiration and motivation from each other. I will briefly mention Sachinji's journey and then hand it over to him to explain in detail. He suffered a stroke in Jan 2018 and is now recovering from the stroke, and he lives with his wife and son in Thane, Bombay. His reasons for the stroke occurrence were obesity and hypertension. So these are some of the factors that do keep coming up again and again in terms of what are the pre-existing risk factors for stroke and cardiac diseases. And eventually, at some point in the future, we will look at some of these things in detail in other sessions. We will also look at symptoms in some sessions. So, Sachin ji, I would also like to request you to talk about your symptoms as you share your journey with us, so that people might become more aware. And he currently works for Dell Technologies. I will hand it over to Sachin ji now. Thank you so much. Thanks, Hetal ji and Sudha, Hardeep ji. Thanks a lot for introducing me. And well, today that I'm standing or I'm sitting here in front of all of you addressing my story, which started around more than 3.5 years ago with my stroke survival. It's all God's grace. I would really thank God Almighty, in whom I believe, through Jesus Christ, that it's prayers and prayers alone that have been able to, get me through this. And my family, obviously my family, my church members who kept praying for me continuously during my hospitalization, during my recovery, and it's all God's grace, nothing else. So I'd like to start with my journey, giving a brief on, one second, I think, yeah. So a brief about my life before and my hospitalization that I went through during my stroke. So at that point in time, I had just completed my 44th birthday in 2017 December, and on 18th of January, I was about to travel to Pune for a meeting, a client meeting. I left from my house in Thane, which is around 150 kilometers from Pune. I was on my way, and 10 kilometers in fact, while starting my journey, I started having a numbness in my mouth on the left side. It was like, as though a doctor has given me an injection or an anesthesia, to extract the tooth. And slowly it started spreading into my hand. And actually, I thought it was because I had worn a kneecap, because I just injured my knee some 2 to 3 days ago. So I thought it was because of that the numbness started. So when I got into the car, I removed the kneecap and thought the numbness will go away in some time. And around 10 kilometers. Sorry for interrupting. Also to remind you about using more Hindi if possible, wherever possible. Okay, fine. I'll switch over to the Hindi and then. तो उसके बाद मेरा जब ट्रैवल शुरू हो गया, उसके बाद कुछ समय के बाद
मैंने करीबन 8-9 किलोमीटर मैंने ट्रैवल अपना कर लिया था एंड काफी ट्रैफिक ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था पुणे की तरफ, और आधे रास्ते में मैंने नी कैप निकाल दी। उसके बाद भी वो नमनेस कम हो नहीं रहा था, वो लेग्स में, हैंड्स में, पूरे लेफ्ट साइड में पूरा स्प्रेड हो गया था। और उसके बाद जैसे मैं ट्रैवल किया, एक आइरोली नाम का एक छोटा सा एक स्टेशन आता है बिटवीन नवी मुंबई और थाने के बीच में। तो जब मैं वहां पे पहुंच गया, मैंने ड्राइवर को मैंने बोल दिया कि बॉस आई नीड टू, मुझे कोई डॉक्टर के पास ले जाओ तुम क्लिनिक में, ये कुछ मुझे अजीब लग रहा है। एंड उस वक्त मेरा वजन कुछ 104 किलो था और मुझे बीपी था, बट मैंने इग्नोर किया उसे कंप्लीटली। एंड डॉक्टर ने मुझे बताया था कुछ साल पहले कि बॉस यू हैव टू स्टार्ट विद बीपी मेडिसिन, जो मैंने बिल्कुल इग्नोर किया। और जब मैं उधर लोकल हॉस्पिटल में मैं पहुंच गया, तो वहां पे एक डॉक्टर आई कुछ समय के बाद। मैं अपने कलीग जो मेरा वहीं पर रहता है उसको मैंने बुला लिया, और जब वो वहां पे पहुंच गया उसने मुझे बोला कि सचिन क्या हो गया। इससे मैं उसको बताया कि बॉस ऐसे तकलीफ हुई है मेरे को। और डॉक्टर आई, उन्होंने मेरा बीपी चेक किया तो बीपी कुछ 220/180 था। और डॉक्टर को खुद को बिल्कुल शॉक हो गया, और उसने मुझे बोला बॉस इट इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, आपकी वाइफ को आप तुरंत आप फोन कर लो, उनको आप बुला लो और आप अपने घर के करीब कोई हॉस्पिटल में आप जाके एडमिट हो जाओ। तो मैंने अपनी वाइफ को मैंने फोन किया, उन्होंने फिर उनके मदर के डॉक्टर को, जिन्होंने उनकी एंजियोप्लास्टी की थी कुछ साल पहले, डॉक्टर विजय सुरासे, जो कि मेरे हॉस्पिटल मेरे डॉक्टर थे, मेरी मदर इन लॉ के डॉक्टर थे, उनको फोन किया। और उस वक्त डॉक्टर ने मुझे बोला भाई तुम तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाओ। और जैसे मैं जुपिटर हॉस्पिटल पहुंच गया, तब वहां पे हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद कैजुअलिटी में डॉक्टर विजय सुरा से खुद थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया कि सचिन आ जाओ। तुरंत मैं बेड पे लेट गया, डॉक्टर्स ने मुझे चेंज किया, मुझे ड्रेसिंग पूरा, मेरे को इमीडिएट चेकअप किया। फिर वहां के डॉक्टर ने, आइरोली के डॉक्टर ने जो मुझे रिपोर्ट दिया था, उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ लिया, कौन सी टैबलेट डॉक्टर ने इमरजेंसी बीपी लोअर करने के लिए मेडिसिन दी थी। और जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंच गया तो मुझे इमीडिएट उन्होंने मुझे एमआरआई के लिए भेज दिया। एक 10-15 मिनट बाद उन्हें पता चल गया, कंफर्म हो गया, ब्रेन के 2 रीजन्स में स्ट्रोक है या ब्लड क्लॉटिंग हुआ था। और उसके बाद उन्होंने मुझे इमीडिएटली मेडिकेशन वहीं पे कैजुअलिटी के बेड पे 3-4 जगह पे आईवी लगा के, आईवी के थ्रू मेडिकेशन चालू किया। तो मेडिकेशन जो था उसे बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस, जो कि ब्लड में जो क्लॉट्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए वो लोग मेडिसिन डालते हैं। और इमीडिएटली लैबिटॉल नाम की एक जो दवाई होती है जो कि ब्लड प्रेशर इमीडिएट लोअर करती है, वो उन्होंने स्टार्ट की। और उसके बाद इमीडिएट मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया। मुझे पता चल गया था, दोस्त मिलने आ रहे थे, कुछ विजिटिंग आज के टाइम फैमिली मेंबर्स, उन्होंने बोला भाई तेरे को स्ट्रोक आके गया है। और तब मुझे स्ट्रोक के में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, बिकॉज मैं भी पूरा स्ट्रेस्ड आउट था, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आई वाज जस्ट वंडरिंग एंड प्रेइंग टू गॉड कंटिन्यूअसली। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे एक बात बताई कि भाई एक बाइबल में एक वर्स है कि यीशु मसीह को जो मार बैठी हमारे वजह से, उसकी वजह से हमें चंगाई मिलती है, जो या ताकि गुड हेल्थ मिलती है, उस वर्स पे मेडिटेट करते रहे। और मैं वो करते रहा एंड कंटिन्यूस में डरा हुआ था बहुत कि भाई ये क्या हो गया मेरे को। एंड उस फियर में आई केप्ट ऑन प्रेइंग कंटिन्यूसली। और 7 रात मैंने हॉस्पिटल में बिताई। और मेरा लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। मेरा डेल में जो जॉब है, इट इज मोर ऑफ अ सेल्स एंड सोल्यूशनिंग जॉब। सो टेक्नोलॉजी सेल्स में हूं मैं डेल के अंदर, एंड इट इज अ कंप्लीट नंबर सेल्स ड्रिवन जॉब मेरा। तो उस जॉब में क्या होता है, टारगेट्स इंटेंस होते हैं, अचीव करने होते हैं वीक ऑन वीक। और उसी टाइम पे जब मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, तब एक हम लोग की अवार्ड सेरेमनी भी हो रही थी बैंगलोर में। उस वक्त मुझे एक अवार्ड मिला था, बट आई कुड नॉट गो एंड रिसीव दैट अवार्ड। मेरे कलीग ने मेरे बिहाफ पे रिसीव किया एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। एंड मेरा एक लाइफस्टाइल था, डेली काम करो, 8-9 बजे आफ्टर वर्क इज डन, बैठ के एक अपनी गाड़ी में बैठ के कारोबार चलता था मेरा। सो कार के अंदर बार आई हैड माई कांच का मेरा ग्लास मेरे गाड़ी में रहता था। I used to open my drink. I used to sit and drink 2 pegs, 3 pegs on a daily basis. I had become real obese. 104 किलो वजन. My tummy looked like जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह मेरा पेट दिख रहा था। It was a sorry state जो मेरी बॉडी की फिजिकल कंडीशन थी। और उस वक्त मैं अपने हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर करता था।
जहाँ पे बीइंग इनटू सेल्स मार्केटिंग, जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ, होटल में बैठ के खाना, कभी ये नहीं सोचा कि भाई घर से टिफिन बना के ले जाओ या कुछ अच्छा हेल्दी खाना खाओ, और नॉनवेज डेली एंड अल्कोहल ऑन अ डेली और ऑल्टरनेट डे बेसिस एटलीस्ट होता था। और फिर 48 आवर्स के लिए मुझे बिल्कुल क्रिटिकल था मेरा, मुझे उन्होंने बेड पे से उठने तक नहीं दिया। और उसके बाद 48 आवर्स जब हुए, संडे मॉर्निंग एक डॉक्टर आई मेरे रूम में आईसीयू में। मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ, मुझे आप डिटेल में बता दो। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें काफी कुछ मेजर इश्यूज है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल वाज एट अ पीक लेवल बिकॉज ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स, और तुम्हारा बीपी इतनी सारी मेडिसिन के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रहा था, बिकॉज मॉनिटर मेरे आंखों के सामने था। जैसे आपको मालूम है आईसीयू के सीन में एक मॉनिटर रहता है पेशेंट के सामने, जो वो देख सकता है मेरा बीपी एज ऑफ नाउ इतना है, मेरे हार्ट बीट्स इतने हैं, मेरा O2 लेवल इतना आ रहा है, तो वो मैं कंटिन्यूस में देख रहा था। एंड आई वाज आल्सो मींस स्ट्रेस्ड आउट कि बॉस ये क्यों कम नहीं हो रहा है इतने मेडिसिन के बावजूद। और उस वक्त मेरी एक टीम थी, डॉक्टर योगेश गोड़गे जो मेरे न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर विजय सुरासे मेरे कार्डियोलॉजिस्ट जो मेरे मदर इन लॉ के भी डॉक्टर रह चुके हैं। सो ये पूरी टीम थी उस वक्त। एंड जो रिहैब टीम आई थी संडे मॉर्निंग आफ्टर 48 आवर्स, फर्स्ट 48 आवर्स वो वेरी क्रिटिकल, और 48 आवर्स के बाद उन्होंने मुझे कहा कि बॉस दिस इज द फर्स्ट डे वी विल मेक यू स्टैंड अप, सिट अप एंड वॉक अ बिट इन द आईसीयू। तो उस वक्त मुझे उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि सचिन आपकी ओबेसिटी इतनी ज्यादा है, आपका जो है आपको स्लीप एपनिया का भी प्रॉब्लम है, जो खराटे बोलते हैं हम। रात को नींद में आप इतने खराटे मारते हो कि आपके अचानक आपकी ब्रीदिंग उसकी वजह से स्टॉप हो जाती है, और ब्रीदिंग स्टॉप होती है तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, आपका ब्रेन इज लाइक इन अ वेरी अनहेल्दी स्टेट। आप नींद में अचानक फिर आप डर के आप उठ जाते हो बिकॉज आपकी सांस बंद हो जाती है। तो यू नीड दैट ऑक्सीजन, योर बॉडी कम्स टू नो अबाउट इट कि बॉस मुझे ऑक्सीजन की अब जरूरत है, मुझे उठना जरूरी है। तो आपकी बॉडी अपने आप जगा लेती है, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया, जिसको हम बोलते हैं खराटे मारना। बट ये बिल्कुल अलग लेवल के खराटे मारने होते हैं जिससे ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है आदमी। और बहुत से लोग इस स्लीप एपनिया में, बहुत से लोगों की डेथ हो गई है, लोग कोमा में चले गए इसकी वजह से, बिकॉज ब्रेन का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो पूरा डेड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब मुझे पता चल गया संडे मॉर्निंग के आई हैव बीन सेव्ड, आई रियली थैंक गॉड। और फिर उस दिन रिहैबिलिटेशन टीम आई जिन्होंने मुझे चलने के लिए बोला हॉस्पिटल के वार्ड में, हैंड की मूवमेंट्स, कौन सा हाथ मेरा कैसे मूव होता है, लेग लिम्ब मूवमेंट सब चेक किए मेरे। और उसके बाद फिर पता चल गया कि कोई डैमेज तो हुआ नहीं है, बट वो जो नमनेस था वो नमनेस था। और अभी भी मुझे हल्का फुल्का नमनेस लेफ्ट आई में, जब भी थोड़ा बहुत ऑफिशियल स्ट्रेस वेस बढ़ जाता है वो ऊपर नीचे होता रहता है नमनेस। बट वो मुझे डॉक्टर ने बोला कि बस वो जो ब्रेन का जो डैमेज पोर्शन है तुम्हारा, वो डेफिसिट 3% 4% जो भी वो रहेगा, सो यू हैव टू इग्नोर इट, यू हैव टू लिव विद इट, दैट्स इट। एंड उन्हें मुझे बोला ओनली थिंग इज यू हैव टू थिंक पॉजिटिव दैट नथिंग हैज हैपेंड टू यू, तुमको कुछ हुआ नहीं है, तुम पैरालाइज नहीं हुए, तुम्हें कोई मेजर डेफिसिट नहीं आया है, तो उसको लेके तुमको आगे जीना है। और उस दिन से मैंने और जब रिहैब टीम में से एक जो डॉक्टर आए थे, उन्होंने मुझे पूछा तुम्हारा डाइट क्या है, तुम क्या खाते हो, कैसा है, ऑल दैट स्टफ। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेन रीजन इज योर ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से, अनहेल्दी ईटिंग की वजह से तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी एंड ऑल दीज थिंग्स जो है एक के बाद एक पूरे मल्टीप्लाई होके हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं और हमें पूरा खींच के नीचे ले आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारी मेन प्रॉब्लम थी। और उस वक्त मुझे हॉस्पिटल में 7 दिन में रुका था। उस वक्त 2 रात मेरी स्लीप एपनिया टेस्टिंग भी हुई थी, जब पता चल गया कि जो क्वालिटी स्लीप होती है, जो कि एक स्ट्रोक के लिए एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी वजह से स्ट्रोक मेन आने का वो भी एक रीजन होता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब फैक्टर्स है ही, हेरिडिटरी ये फैक्टर है। इसके बावजूद स्लीप पैटर्न भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से हमारे ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो काफी हैम्पर होता है। तो मुझे तब पता चल गया कि बस ये जो था मेरा लाइफ में, हम लोग को लगता है आदमी 1 ड्रिंक 2 ड्रिंक ले तो अच्छी नींद लगती है, बट in fact that's the wrong thing, which I will also cover up in the future in the next slide, because how drinking also hampers your sleeping style, it damages your brain internally. और तो coming back to this, तो हॉस्पिटल में जब मेरे 7 दिन स्टे थे, तब उस वक्त मेरा एक ASD क्लोजर, एक ASD का टेस्टिंग हुआ था,
एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, और इंडिया में जो हम सुनते हैं ब्लू बेबी हुआ किसी को, या किसी के बेबी के हार्ट में वो एक ओपनिंग है बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड द राइट ऑरिकल, जिसकी वजह से प्योर इम्प्योर ब्लड काफी वक्त मिक्स होता है उनका। तो वो मेरे केस में वो इश्यू था, सिंस बर्थ आई हैड इट। तो हमारे देश में, इंडिया में अराउंड 25% लोग हैं, 25% पीपल हु एक्चुअली लिव विद दैट प्रॉब्लम थ्रू आउट देयर लाइफ। किनको कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई लोग बिल्कुल उससे आराम से जी जाते हैं। बट मेरे केस में क्या हुआ, माई क्लॉट्स हैड पास्ड ऑन टू माई ब्रेन थ्रू दैट इशू, और फिर डॉक्टर ने डिसाइड किया कि 1 महीने के बाद वी कैन हैव दिस सर्जरी इफ यू वांट इट। पहले के दिनों में ये जो सर्जरी थी, इट यूज्ड टू बी एन ओपन हार्ट काइंड ऑफ अ सर्जरी, हार्ट को पूरा ओपन करते थे। बट अब की टाइम पे कैसा हो गया कि नाउ दे इंट्रोड्यूस अ कैथेटर थ्रू योर लॉयन, हमारी जान के यहाँ से कैथेटर डालते हैं, वो हार्ट तक पहुंचता है। वो फिर एक अम्ब्रेला टाइप चीज है, मेटालिक रहती है वो, टाइटेनियम की, वो हार्ट के वो होल के दोनों तरफ डाल के वो बराबर से उसे क्लोज कर देता है। जैसे कि एंजियोप्लास्टी होती है, एक जो नैरोड आर्टरी को ओपन अप करती है, उसी तरह से ये होल को पंक्चर करके फिट कर देती है। तो 1-1.5 महीने के बाद हम लोगों ने ये भी प्रोसीजर किया, और उस प्रोसीजर में मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल पे आने लग गया। और उस वक्त मेरे हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मैंने एक काम शुरू किया, नेक्स्ट डे मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी लगाई उसके बाद, आफ्टर 1 वीक ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, और मैंने एक सोच लिया, नो अल्कोहल फ्रॉम टुडे, हेल्दी ईटिंग कंप्लीटली। हॉस्पिटल ने जो डाइट दिया है वो डाइट मुझे फॉलो करना है, कम वॉट में जो भी हो, मुझे वो डाइट में कुछ भी करके, कितने भी मेरा बिजी शेड्यूल हो, आई विल मैच दैट डाइट एंड आई विल रिड्यूस माई वेट। वो एक मुझे मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक लगान सी बैठ गई थी कि भाई अब के बाद नो मेसिंग अराउंड विद लाइफ। 44 इयर्स में काफी साल वेस्ट हो चुके हैं, अब के बाद नथिंग डूइंग। तो फिर मैंने वो पूरी तरह से मैंने ठान ली, और 26 जनवरी 2018 में मुझे डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से। मैंने शाम को मैं अपने बेटे को ले गया, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट वाज अ बीपी मॉनिटर एंड अ वेइंग स्केल। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठा, हॉस्पिटल ने जो मुझे प्रोसीजर्स बताए थे, सुबह उठते ही 1 लीटर पानी, ये वो पी लो, वो सब आप शुरू कर दो। मैंने पहले अपने को, आफ्टर टॉयलेट एंड एवरीथिंग, आई चेक माई वेट, 104 या 105 किलो कुछ दिखा रहा था तभी, और मैंने अपने शूज पहन लिए, आई वेंट फॉर अ वॉक। एंड ये मैंने लगातार 1 हफ्ते तक मैंने किया। हफ्ते भर के बाद मैंने अपना वेट चेक किया, 105 से 99 केजीज पे आ गया था। मैंने कहा अपने आप से कि बॉस हो सकता है ये काम, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, डोंट गिव अप। हॉस्पिटल का डाइट में फॉलो अप करते रहा। महीने भर में मैंने 10 किलो मैंने लूज किए, और उसी टाइम पे उसी दौरान मेरा वो हार्ट का मेरा सर्जरी हो गया। उसके बाद वेट लॉस, मेरे हार्ट की वो करेक्टिव सर्जरी के बाद मेरा बीपी भी काफी लो ड्रॉप होने लग गया। एंड जो डॉक्टर ने डिस्चार्ज के वक्त मुझे 8-9 गोलियां दिए थे, वो बिल्कुल नॉर्मल गोलियों पे आके रुक गए। तो अब की तारीख में, आज की तारीख में मैं जस्ट एक टेल्मा 40 विच इज अ वेरी बेसिक डायबिटीज ब्लड प्रेशर मेडिसिन, और इकोस्प्रिंट गोल्ड 10 mg, बस ये 2 गोलियां मैं लेता हूँ, विच आर वेरी बेसिक मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, जो कि मेरी अब शुरू है। एंड ऑन अ डेली बेसिस आई लिव अ वेरी फिट लाइफ एंड ए हेल्दी लाइफ। फिर सेल्फ रियलाइजेशन, तो 7 रात मैंने जब हॉस्पिटल में मैंने बिताई, मैंने अपनी गलतियां मैंने देखी कि बॉस ऑफिस आवर्स के बाद टाइम मिलता है मुझे, आई डिड नॉट join a gym, or I did not go for a run, I did not walk, I did not practice healthy eating timings, I did not do all these things, but still God has given me a chance. ऊपर वाले ने मुझे चांस दिया कि भाई तू जिंदा रह फिर भी। एंड 3 जगह पे नीडल्स डाली थी कि बस मुझे सब दवाई दे पाए डॉक्टर लोग, और वो सब दवाइयों के साथ एंड ऑल दैट, मैंने देखा कि बस आदमी को लाइफ में एक न एक दिन हर एक को मरना है, बट नॉट इन दिस वे, नॉट विद सो मच ऑफ अ टॉर्चर। तो मैंने उस वक्त मैंने सोच लिया कि बॉस लाइफ हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। दो 7 नाइट्स जो मैंने हॉस्पिटल में बिताए, मैंने सोच लिया अपने लाइफ में चेंज करना है। और मैंने ये भी देखा कि फैमिली डिस्टर्ब थी, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, शी हेल्प मी थ्रू एवरीथिंग। तो उसके लिए माय सन वाज क्वाइट अपसेट, उसकी रोने वाली शुरुआत हो गई थी तभी। हॉस्पिटल में आता था मुझे देखने, ही वाज इन नर्वस मूड। मैं सोचा बस इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी दैट माय फैमिली हैज सफर्ड, नाउ नथिंग डूइंग। अब लाइफ में पूरा चेंज होना चाहिए अपना लाइफ। और अर्लियर साइंस, ये जो स्ट्रोक जो आते हैं हमारे सबके लाइफ में, हम सबको कोई ना कोई सिग्नल, सिंबल या कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं इसके।
अब कुछ 6-7 महीने पहले मेरे साथ हुआ था ऐसे। मैं एक दिन ऐसे, मैं चेन्नई गया हुआ था ऑफिशियल ट्रिप पे, और होटल रूम में मैंने जस्ट सुबह मैंने शेव किया, ब्रश किया, नहा धो के मैं बैठा था टू लीव फॉर अ मीटिंग। और रूम में बैठे बैठे मुझे ब्रेथलेसनेस फील हो रहा था, और मीटिंग वो फिनिश करके आई वाज अबाउट टू ट्रैवल बैक टू बॉम्बे। एंड वो ब्रेथलेसनेस में फिर मैं उठ गया, मैं थोड़ी देर उठ गया, गाड़ी में मैं सो गया थोड़े टाइम के लिए, एंड आई वेंट फॉर अ मीटिंग। एंड फिर वहां से मैं एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट पे मुझे काफी रेस्टलेस फील हो रहा था। मैंने 2-3 टैबलेट्स मैंने ले ली, कुछ वहां पे लोकल अपना हॉस्पिटल जो था चेकअप, वहां पे गया, तब बीपी हाई था, बट उधर के एयरपोर्ट स्टाफ ने मुझे बताया नहीं कि बस तेरा बीपी बहुत हाई, यू कैन नॉट ट्रैवल और व्हाटएवर, यू नीड इमीडिएट अटेंशन, नहीं बताया। बिकॉज आई नो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होगी, सो दे डिडंट प्रॉब्ली वांट टू फॉलो दोस प्रोटोकॉल्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये टैबलेट तुम ले लो एंड कैन बोर्ड योर फ्लाइट। मैं फ्लाइट पे सो गया, ठीक लगा मुझे। नेक्स्ट डे से फिर मैंने वापस अपना रूटीन, काम सब होने के बाद रात को बैठो, ड्रिंक लो, अपना जो खाना है खा लो, बीवी का नहीं सुनना, वो सब चालू रहा मेरे लाइफ में। सो ये अर्लियर सिम्टम्स, अर्लियर साइन जो मैंने यहाँ पे इस पेज पे तीसरा पॉइंट है, वो सबको मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99.9% केसेस में ये सिम्टम्स का हमें पता चलता है। बट वी गेट स्केयर्ड कि भाई डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो डॉक्टर कुछ तो बड़ी चीज बता देगा मेरे को, कुछ बड़ा बिल फटेगा मेरे पे, फैमिली को क्या होगा, मैं पैसा कहाँ से लाऊं, मेडिक्लेम नहीं है मेरा। लोग अक्सर ये सब छोटे छोटे वरीज में लोग इसको टाल देते हैं, और अचानक एक बड़ा बॉम्ब फूट जाता है सबके लाइफ में। सो we tend to avoid going to a hospital or to a doctor and seeing when things are very much in control, चीजें कंट्रोल हो सकती है, चीजें बराबर से मैनेज हो सकती है, तब हम लोग इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और फिर मेरे स्ट्रोक के बाद जब मेरा रियलाइजेशन हो रहा था, मेरा जब रिकवरी सब हो रहा था, तब मैं एक डॉक्टर अजय शर्मा से मिला। ही इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बिकॉज मेरे लेफ्ट आई के विजन पे थोड़ी बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, तो मैंने उनसे आके मैंने अपॉइंटमेंट ली। उन्होंने मुझे कुछ आईज कोई मशीन के सामने रख के, पूरा ब्राइट लाइट था, और फिर ही शोड मी कि बॉस तुम्हारी बीपी हिस्ट्री ने तुम्हारे आईज को काफी इम्पैक्ट किया है, देयर वर लॉट ऑफ वाइट स्पॉट्स एंड ऑल इन माय रेटिना एंड ऑल दीस थिंग्स, उन्होंने मुझे बताया। और वो डॉक्टर थे 55 इयर्स के, बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम, और उन्होंने मुझे कहा सचिन देख, अब तेरे को मेडिसिन तेरे कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट ने काफी कुछ दी होगी, बट अगर तुझे लाइफ में अपने आप को चेंज करना है, कोई एक स्पोर्ट अडैप्ट कर ले, ताकि तू अपना पास जो लाइफ था उसे तू आसानी से भूल सके। तेरे जो दारू की जो तेरी ड्रिंक्स की आदत थी, उसे तू कंप्लीटली भूल जाए, उसकी तेरे को जरूरत नहीं पड़े वापस सपोर्ट के लिए। उन्होंने मुझे कहा ऐसे कुछ तू कर। उन्होंने मुझे ये बोला कि धीरे धीरे अब तूने वॉकिंग तो शुरू किया है, तू एक सोच कि 6 महीने के अंदर मैं एक मैराथन भागूंगा, और उसकी तैयारी शुरू कर दे। उन्होंने कहा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, छोटे छोटे मैराथन होते हैं, स्टार्ट विद स्मॉल 5 किलोमीटर। फिर मैंने जैसे जैसे मैंने वॉकिंग मैंने शुरुआत की 2 किलोमीटर से, 2 से 4 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर होते गया वॉकिंग। फिर मैंने सोचा हमारे एरिया में एक मैराथन थी कुछ अगस्त महीने में, जनवरी में मुझे स्ट्रोक आया, अगस्त में मैंने अपनी फर्स्ट मैराथन मैंने फिनिश की। टाइमिंग पूछो मत, हॉरिबल था, बस मुझे इतना था, मैं चल के जाओ, थोड़ा भाग के जाओ, थोड़ा चल के जाओ, मुझे कंप्लीट करना है, वो फिनिशर मेडल मुझे लेना है। सो मैंने बस उसी के लिए मैंने किया। उसके बाद फिर और उस मैराथन में मेरा बेटा भी मेरे साथ था, उसने 2 किलोमीटर की कंप्लीट, एंड हम दोनों काफी खुश हो गए। तब तक मेरे चेहरे पे काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। तो मेरा जो 104 किलो वजन था वो कुछ 80-85 के आसपास आ गया था। सब कुछ काफी कुछ चेंजेस आ गए थे मेरे बॉडी में, एंड आई स्टार्टेड लिविंग अ वेरी गुड हेल्दी लाइफ। काफी अच्छे से मेरे रात की कंप्लीट 6-7 घंटे की नींद अच्छे से होने लगी, और उसके बाद मैंने देखा कि अपने मेरे चेहरे में काफी कुछ चेंजेस आ गई, काफी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। मैंने देखा कि बस अब ये लाइफ मुझे चाहिए हमेशा से आगे। आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट ओल्ड लाइफ। जीरो अल्कोहल, अब 3 साल कुछ 9 महीने हो गए, मैंने अल्कोहल को अभी तक हाथ नहीं लगाया। इट्स कंप्लीटली जीरो अल्कोहल। नॉन-वेज means I eat non-veg daily because of my gym diet. It's boiled chicken, boiled eggs, but it's all within the limits. और मेरा cholesterol सब कुछ मैं check करते रहता हूँ because of a non-veg diet, and I've got a complete balanced diet now. And तो thanks to that कि डॉक्टर ने मुझे जो बताया, and I would like to share this example with everyone कि sports is something, activity is something that will help each of us to help those medicines that doctors give to us to work for us. Why? क्यों? अब ये जो डॉक्टर्स हमें दवाई देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई शुगर होता है, उसके लिए डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन सालों साल क्या होते हैं,
वो मेडिसिन की पावर बढ़ते रहती है, और वो मेडिसिन जब हम लेते हैं, ये हमारी किडनी और लिवर के थ्रू जाते हैं ये मेडिसिन, और ये किडनी लिवर को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करते हैं मेडिसिन। तो और ये अल्टीमेटली यूरिन के थ्रू हमारे एक्स्ट्रा फैट जो कोलेस्ट्रॉल से होता है, एक्स्ट्रा ब्लड प्रेशर से जो सॉल्ट होता है बॉडी के अंदर, या तो फिर जो शुगर होती है, उसको यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं, जिसमें जिस प्रोसेस में अगर मेडिसिन तुम्हारी बढ़ती है तो तुम्हारे किडनी और तुम्हारे लिवर पे इम्पैक्ट होता है। उनकी जो है ना हेल्थ, उन किडनी लिवर हेल्थ धीरे धीरे सालों साल के बाद डिटोरेट होने शुरू हो जाती है। तो मैंने तो बट अल्टीमेटली तुम कोई एक्टिविटी करो, तुम कोई स्पोर्ट करो, तुम अगर इफ यू स्वेट इट आउट, पसीना तुम निकालो, पसीना बहाओ एक्सरसाइज एक्टिविटी से, तो धीरे धीरे वो मेडिसिन की पावर कम होती है। जिस तरीके से मैंने देखा, मेरी जो मेडिसिन की पावर थी बीपी की, नॉट टेल्मा, एजिलक्लैड 125 mg वाली टैबलेट जो थी, वो अब मेरी 40 पे आई है, बिकॉज इट्स जस्ट टू मेंटेन, बिकॉज आई एम 48 नाउ। तो मेंटेनेंस के लिए डॉक्टर ने दे रखी है मुझे लाइफ टाइम के लिए, तो आई हैव टू कंटिन्यू विद दैट मेडिसिन। बट वो गोली की पावर इज एब्सोल्यूट मिनिमम नाउ, एंड माय बीपी इज बिल्कुल नॉर्मल रहता है, मेरा बीपी, मेरा कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। सो स्पोर्ट्स एंड diet is something that has really helped me in my control of my weight, in control of all my medical parameters. मेरे सारे मेडिकल पैरामीटर्स मेरे डाइट और मेरे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से कंट्रोल हो चुके हैं काफी हद तक, एंड आई लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। और मेरा दूसरा एक पॉइंट था कि भाई मुझे वेट लॉस बहुत सीरियसली इंप्लीमेंट करना है, बिकॉज आई वॉज नेवर एन ओबेस पर्सन, बिकॉज ऑफ अल्कोहल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से मेरा वेट काफी रैपिडली बढ़ता गया सालों साल के बाद। सो ये सेल्फ रियलाइजेशन एंड लाइफ आफ्टर माई स्ट्रोक, मैंने अडेप्ट कर लिया। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेरा प्रेजेंट लाइफ, मैं डेली उठते ही आफ्टर ब्रशिंग एवरीथिंग, आई फर्स्ट read the Bible, I pray, I thank God Almighty for having shown me another new day in my life. मैं हमारे stroke survivors group पे भी मैं देखता हूँ कि people are going through real tough conditions, but God, you've helped me to live a life, to live a healthy life after such a major incident in my life. I'm really thankful to God for all this. I go for my morning walk, आके अपना breakfast खा लेता हूँ। दिन में 8 से 9 घंटे मेरा जॉब, ऑफिस, अभी तो ऑफिस नहीं है, सब वर्क फ्रॉम होम करे, तो एक कंटिन्यूस मीटिंग, जूम मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स होती रहती है। इवनिंग्स में 1 से 2 घंटा जाके जिम में वर्कआउट करता हूँ, डिनर एंड स्लीप अ गुड 6 to 7 hours ऑफ स्लीप। मेडिसिन टाइम टू टाइम लेता रहता हूँ मैं अपने। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर हेल्पिंग मी टू मेंटेन अ गुड हेल्दी लाइफ। So, मेरी advice या my personal advice to people who've suffered a stroke or people who've not even suffered a stroke, think of risk factors that have impacted you to get a stroke. In case आपको stroke आके गया है, क्या risk factors है जिसकी वजह से आपको stroke आया है? उन risk factors को अपने लाइफ से तुम निकाल दो, धीरे धीरे कम कर दो उनको। स्ट्रोक आया है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, ये है, जो भी है बीमारी मुझे आई है, एक्सेप्ट इट। कभी उससे दूर मत भागो कि बस मुझे ऐसा क्यों हुआ। डोंट फाइट विद योरसेल्फ, डोंट फाइट विद गॉड कि भाई मुझे ऐसा क्यों, मेरे को नहीं होना चाहिए, मैं अच्छा बंदा हूं, मैं ये हूं। नहीं, डोंट कीप फाइटिंग विद योरसेल्फ, डोंट कीप आर्ग्यूइंग विद योरसेल्फ। एक्सेप्ट इट, वर्क टुवर्ड्स इट, उसकी तरफ तुम काम करना शुरू कर दो। डॉक्टर से टाइम टू टाइम मिला करो, उनसे डाइट, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल क्या जीना है। आजकल डॉक्टर्स तो तुमको बताते ही, बट यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह पे काफी कुछ हेल्प अवेलेबल है। टेक दोस हेल्प्स। ये जो आदतें हैं, लाइफस्टाइल आदतें, स्मोकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी ईटिंग, इनसे हमको दूर भागना है, बिल्कुल दूर भागना है। कोई एक, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि बस ऑफिस हो गया, काम हो गया, फैमिली के लिए मैं कमा रहा हूँ, अपना जॉब कर रहा हूँ, जॉब में मैं काफी अच्छी तरक्की कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, बस शाम को मैं अपने लिए थोड़ा जी लूंगा, चलो थोड़ा बैठ के दोस्तों का 2 पैग मार लिए या थोड़ा कुछ टाइम पास कर लिया। उससे अच्छा जिम चले जाओ। आजकल जिम मेंबरशिप्स, इवन इफ you don't have the time to reach a gym, आपको जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, एक पेयर ऑफ शूज खरीद लो, स्पोर्ट्स शूज बेसिक, एक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर डेली ब्रिस्क वॉकिंग किया करो, या तो फिर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करो, बट जस्ट नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बट कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी रखो। स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सबसे बेसिक एक्टिविटीज है जिसमें आपको ज्यादा एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्क टुवर्ड्स योर हेल्दी पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स तुम्हें स्ट्रोक, जिसकी वजह से तुम्हें स्ट्रोक आया है, ब्लड प्रेशर होगा, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल होगा, तुम्हारा शुगर लेवल्स होगा,
उन पैरामीटर्स को कंट्रोल करो। कैसे? एक हेल्दी डाइट से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से, और तुम्हारे डॉक्टर्स से रेगुलर मिलते रहो। सी योर ओल्ड रिपोर्ट्स, तुम्हारा टाइम टू टाइम तुम्हारा चेकअप करते रहो, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, देखो तुम्हारे में क्या इंप्रूवमेंट्स आ गई है। नहीं आ रही है इंप्रूवमेंट्स, तो देखो तुम क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। What is it that you're improving in your diet? If your diet is not, if your diet is not good enough, if your physical activity is not good enough, work towards it. If you're getting stressed out too much at work, take some break. एक जो है हमारी कोई लोग हमारे में से वर्कaholic होते हैं, डे एंड नाइट काम काम काम। ये जो ब्रेन है, हार्ट है, बहुत वीक ऑर्गन्स है, ये हमारा साथ देते हैं लाइफ टाइम में, बट कभी ना कभी इनको भी तकलीफ होने शुरू हो जाती है। So start working towards protecting them, because and giving a body a good healthy lifestyle. Because तुम्हारे पास कोई बड़ा बंगला हो, कोई बड़ा मैंशन हो, बट अल्टीमेटली हमको जब तक हम इस दुनिया में इस बॉडी के अंदर हमको जीना है, तो उस बॉडी को हमको हेल्दी रखना है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में ये रहा है। सो ये जो लेफ्ट का जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये जो दो पिक्चर्स दिख रहे हैं, मैं था ऐसे बिफोर माय स्ट्रोक, और ये मेरा सबसे रीसेंट फोटोग्राफ है ऑरेंज टी शर्ट में, मॉर्निंग वॉक के वक्त। फिर ये जो है एक ब्लू टॉप में पीछे वो कॉफी वेंडिंग मशीन है, वो मेरा हॉस्पिटल का लास्ट डे। और ये नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर में मेरे सारे के सारे पिक्चर्स विद माय सन, मेरे बेटे के साथ मैराथन्स, वो सब भागने का फिनिश करते हुए, फिनिश और मेडल का फिनिश करते हुए, और जो मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, मैं पहले कैसे दिखता था और अब मैं कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। और ये सारे के सारे मेरे और मेरे बेटे के मैराथन के मेडल्स है। और ये 2019 में, आज से 2 साल पहले नवंबर में, मैंने एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में मैंने हिस्सा लिया था। मैं जिम जाने लग गया, काफी ट्रांसफॉर्मेशन दिखी अपनी बॉडी में। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, जो कि 40+ के उम्र के लोगों के लिए होता है। वहां पे मैंने बिल्कुल नेचुरल डाइट, नेचुरल एक्सरसाइजेस से मैंने कंप्लीट किया, कोई स्टेरॉइड्स कुछ नहीं लिया, और मेरा 7th नंबर आ गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और अब पता नहीं, अब कोविड की वजह से या लॉकडाउन की वजह से देयर कुछ मैराथन्स नहीं हुए हैं, तो अभी देखते हैं। बट मैराथन्स, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं अपने आप को फिट रखता हूँ, रेगुलरली जिम जाता हूँ, वॉकिंग इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ माई लाइफ। और सारे के सारे जो सफर हो गए हैं, अभी सबको ये मौका नहीं मिला है कि फिटनेस या किसी कोई लोगों को कुछ डैमेजेस हुए हैं, बट उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं फैमिली में, जो भी उनको हेल्प करते हैं, बी वेरी पॉजिटिव। डोंट ब्लेम योरसेल्फ और योर सिचुएशंस फॉर इट, रादर ट्राई टू कम आउट एंड सी, लुक एट फैक्टर्स जो आपको उस सिचुएशन में से निकाल सकते हैं। थिंक पॉजिटिवली। मेरा एक मैनेजर था उस वक्त, उनको मालूम था मेरा लाइफस्टाइल क्या है, बट आई वाज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, आई यूज्ड टू बी अ परफॉर्मर। तो उन्होंने मुझे एक ही बोला कि बस जो भी हो ना सचिन, उसको भूल जा। तूने दारू पिया, ये किया, वो किया, भूल जा उसको। डोंट ब्लेम योरसेल्फ, डोंट कंडेम योरसेल्फ फॉर इट, बट नाउ ऑनवर्ड्स तुम एक पॉजिटिव लाइफ जीना शुरू कर दो। बस उसी के बेसिस पे आई हैव गॉन अहेड, एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज गॉड्स ग्रेस। And thank you everyone for listening to me, for bearing with me for the last 35-40 minutes. Thank you so much. और कुछ queries हो, कुछ question answers, you can now, I think we can start with question and answers, या कुछ सवाल, कुछ doubts हो आपको, आप लोग शुरू कर सकते हो। Yes, hi Wilson ji, you had a question. Hi, good evening, Harjeet ji, Hetal ji, and Sachin ji. Am I audible? Yes, yes. Yeah. Yes. Okay. So my first question to Sachin ji will be that since your medicines basically has reduced only to Telma and Ecosprin, Yeah. the very basic drugs. So of course there is a lot of sweat into it, that you have been gymming and you have been doing a lot of marathons. So what was your previous medicines in the initial, when you were in the hospital, the Yeah. 7 days in the ICU, 6 days in the ICU?
So what was your medicine from seven tablets? You have 9 come down to tablets. only I don't remember all of those tablets, but then there were tablets like Disperzyme at the time of discharge. There were a lot of other tablets, which in future would avoid, which would keep me away from other diseases, like, Alzheimer disease and all these kind of diseases occurring after a stroke history. So those were all those kind of diseases. And BP, I had 2 tablets of BP. One was a Nebistar 5, one was a Azilclad 125. Cholesterol, I had real heavy medicines. So now cholesterol was somewhere around 60 to 80 mg was my dosage. Now it's just a 10 mg of basic Ecosprin Gold. So Ecosprin Gold is a tablet which has got Ecosprin, which is a blood thinner. Plus it has got a cholesterol molecule, atorvastatin, that helps to reduce the cholesterol. So that's it. That's a very basic medicine. Or else earlier my blood thinner was a very severe blood thinner that was called as a Xarelto. It was Xarelto. So Xarelto was such a strong medicine. Doctor had told me that you can't even blow your nose very strongly. You can't even cough very loudly, because at times I had bleeding problems, So that was there for initial 10 months till my cholesterol and all started coming to normal. Oh. So these were all Okay. very heavy medicines. Okay. So I had a cough and cold sometimes, when I was on Xarelto medicine. So I had a lot of bleeding from my nose also at that point in time. Okay, Sachin ji. Yeah. Now my second question is regarding your sports activities. What your ophthalmologist has suggested that you have to take certain sports activities, and that is what I myself am very much inspired by having this thing with you. But what sorts of post can we take sports like martial arts or boxing or something like that? Because see, the brain injury might be Yeah. there. And can we take boxing? Basically, I would like to I know. personally have been a boxer in school days. So I will not suggest boxing as a sport, because boxing, martial arts will be a lot of jerks to your body. It's a lot of movement. Your face might get hit badly and that would impact your brain. So boxing, martial arts is what I would not advise. Even with weights, I do my weights, but with normal, moderate weights. That's it. I focus more on repetitions and less of heavy weights. And whenever you start, you have to go very gradually in terms of increasing your weights also. So what I did was, when I saw that my weight has reduced, college days, I used to go to the gym also very regularly. So I started, after I lost my weight, when I came into 80s, around 83, 84, after my running, I started doing push-ups, sit-ups. I saw my strength is getting back. With push-ups, I saw that my arms are getting stronger. I can do my activities much better. Earlier, there were times when things have fallen off my hands after my stroke. When I used to speak, I used to, have, my words used to miss out. I used to have a slurry speech in the beginning. I have gone through all these issues. But as you keep attempting to do things, things get better with you. But whatever you start with very low intensity in the beginning. Martial arts is something that I really would not advise. If you're on a blood thinner or something of that sort, I would not advise, because the blows and all, would impact you. Okay, thank you so much, Sachin ji. My one question is that after your hospitalization, you were employed as an employee for Dell, Yeah. and you said that only 2 weeks you had to take leave from your company, and you resumed your duties in when you got the stroke. So was that Yes. sufficient for you, or you wanted more rest, or you wanted to take something more, your body or your medical condition or disease or illness demanded it? No, see, I saw one thing that, the moment I told you about this ASD closure also, I had to undergo an ASD closure surgery also. I knew that I would need 1 week of leave at that point in time also. So 2 weeks was sufficient for me, I think, at that point in time, because I did not have any major damage. Even during my stroke, when I had got my stroke, after I got down from the car to the casualty, I walked it by myself.
And I saw one thing, that I don't think I'll need more than 2 weeks of leave. And I thought of one thing, that the more positively I take it, the more I, get into activity, the better I'll start getting slowly. So that is the point which I took to myself and said, was, you can do it and you can move ahead in life. So it is much more of a mental Yes. game rather than the physical damages. Yes. So that's the reason why I said that whenever you have a person being with a stroke survivor in the family, he has to speak very positive to that person, that you can do it. Mhm. Even if your arm is gone, your foot is gone, you're not able to walk, encourage him. Maybe you'll have to put his foot forward, hold his foot, put it forward for him. Give him some supporting aids. Today you've got good walkers and all these things available. The more you attempt, the more it gets, used to doing those activities. The more you start resting, the more you start getting more lazy and lethargic. It's all in the mind. That's what I noticed in my life. I also had issues. I could not speak at times. At times I used to miss my words. I used to be slurring. I used to have, I had a couple of things fall down from my hands initially, but I didn't give up. And let me tell you one thing, with weight training, when I started weight training, I started with 5 and 10 pound dumbbells. When I used to do a 5-pound dumbbell, my numbness used to go up again. The numbness of the left hand would increase. But by the time my hand used to get to the 5-pound dumbbell, 5-pound dumbbell workout would not cause any numbness, but 10-pound would. And slowly, as the poundage started increasing, my strength of my hand started coming back. One more question, Sachin ji, is basically when this is much more of a medical or whatsoever it is, we might be, most of the stroke survivors or something might be experienced. That is what I experienced, is that at times you get constipation due to your this thing, and what has happened, while you go for your toilets, you put pressure for defecation. Yeah. At that time, what I have experienced is that you get blindness in front of your eyes, and or stretch or much more pressure on your brain. That is what is experienced. So had you ever, while doing an exercise also, sometimes if you are using more heavy weights, it happens. So It this too. happens, yeah. So is it this thing very much common, or is that having any medical or When it's psychological effect? when it's related to constipation kind of things, I would just suggest one thing: drink a lot of water, eat a lot of salads, a lot of fiber. So today in my diet, I've got a lot of one big decent sized bowl of salads that I eat with my meals. I drink a lot of water. So diet is something that is responsible for your bowel habits very clearly. So if you're, अगर आपका diet अच्छा होगा, आपको toilet वॉलेट का problem नहीं होगा. And yes, workout exercise के time मुझे भी blackout होता रहता, कभी-कभी heavy weights मारते time, but I don't attempt too much of heavy weights at times. So avoid that. If that is a thing, now avoid it. Do normal light to medium weights if you want to build muscle, if you want to look good, if you want to look young, whatever. Get the strength back in you. It is not heavy weights that will help you. It is moderate weight with the right workout and right kind of repetitions that will help you come back. Okay, thank you so much, Sachin ji. Welcome. Hello. Thank you, Wilson ji, for raising these questions, and Sachin ji for your insights into them. Did anybody else have any questions? I don't see any raised hands. All right. If anybody else doesn't have any questions, I'll go ahead and ask one.
So Sachin ji, what you seem to have gotten treatment in a pretty much timely manner Yeah. compared to a lot of others. Were there still some gaps that you saw in your experience in your case that you feel can be improved upon by the medical fraternity? I don't think so. I don't think any gap was there from my doctors, and and in fact, I would say that the team was excellent in whatever job that they did. So the team was ready, expecting with the symptoms that my wife had conveyed to the cardiologist. The team was absolutely ready to do their job. And Jupiter Hospital is a stroke-ready hospital. So in that case, what they started was, even before wasting the time till I reached the ICU, by the time they got to know that I have got a brain stroke, my wife had reached the hospital to sign the respective papers for the permission to give Actalize as the medicine. And they started the Actalize in the casualty itself. They started with Actalize with Lobitol was an injection. It's a horizontal injection that goes through a syringe on a slow, timely basis. So the BP reduction and the clot buster medicines that started with immediate effect. So I started feeling the symptoms by around 8:30 in the morning, around 8:45 in the morning. And I was back in the hospital by around 11:30. 11:45, my treatment started. So within that 4.5, 5 hours of golden window, I got my medication. So I would say that I would take one ownership, I would take it on me. Early morning, off for a meeting. By the time I reached Airoli, the doctor gave me a BP pill to have immediately at that time. And she told me, rush to your hospital. But I was so hungry. I told my friend, bhai, pehle ek vada sambar khate apan and fir hospital jate hain. So that's where I wasted around half an hour of my golden hour. So I would blame myself for it again. Right. Hospital where the doctor advised you. Yeah. They were not stroke ready and they were not willing to take on. Yeah, they told me it was a small polyclinic which had doctors on a visiting basis. So they told me, call your wife, call your family, because seeing my face, whenever you have a brain stroke at times, doctors, they recognize it. You may not feel that your face has gone crooked or it's swollen beyond a limit. But my wife, after I got discharged, my wife told me, Sachin, your face was discolored. Your face had bloated up like anything. So that's probably, which a person may not understand, but someone seeing him may understand that there's something wrong with this person. Right. So probably that's the reason why the doctor told me that please call your wife immediately, be with your family, ask your family to get you admitted somewhere and get yourself observed. And they didn't even suggest DY Patil. No, DY Patil is further on towards Nerul. So Nerul is another 15-20 kilometers from Airoli. And early in the mornings, that patch from Airoli to Belapur is pretty, it's a high traffic road. Right. So this was the better option. And also I had to travel back to Thane from Airoli, which was opposite the peak traffic hours of Bombay. Right. So that makes sense. That really helped me a lot. Also, your family is around in Thane, so everything becomes my easier. Family, my wife, my mother-in-law, immediately she rushed home to take care of my son because my wife had to be in the hospital. My brother-in-law rushed immediately. So she told me, go to a place where your family, your home is nearby. Right. Okay. Makes sense. Yes. Dr. Ray has a question. नमस्कार सचिन जी। नमस्ते सर जी, गुड इवनिंग। नमस्कार। मेरा नाम पार्थो राय है, मैं पेशे में डॉक्टर हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कहानी सुनने में। सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। हाँ जी सर। पहला पार्ट तो रूटीन है, उसी तो हम सभी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन आप चिकित्सा शास्त्र में जो उन्नति हुआ है वो ठीक मौके में आपको मिला। बिल्कुल। तो इसके लिए हम भगवान से थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि आप राइट टाइम में, राइट प्लेस में, राइट पर्सन से मिल गए और सब कुछ राइट टिक था। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आप बैक टू नॉर्मल हैं। और एक तो बैड ड्रीम था, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बहुत कुछ अलग सा स्टोरी आज बन सकता था, लेकिन
ऊपर वाला का दुआ से हम कहीं अलग जगह में हैं। तो कुछ प्रश्न है आपसे, रिफ्लेक्टिव प्रश्न है, साइंटिफिक नहीं है। आप आपका बेटा को क्या बोलेंगे? आपका लाइफ जो एक्सपीरियंस हुआ, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ क्या सिखाना चाहते हैं? मेरे बेटे को मैंने एक ही कह दिया लाइफ में कि बेटा बुरी आदतों से हमेशा दूर रहे। मेरा बेटा 18 साल का है और उस साल उसकी 10वीं की एग्जाम हो गई मेरे स्ट्रोक के बाद। उसी साल मेरे अपने बेटे को भी मैंने जिम, मैराथन, ये सब चीजों की और मैंने उसको मुड़ा दिया। मैंने उसको कहा बेटा लाइफ में हेल्दी ईटिंग और हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आज भी हफ्ते के 5-6 दिन मेरे साथ जिम आता है डेली। हम लोग दोनों एक दूसरे के वर्कआउट पार्टनर्स हैं। तो जब कोई डंबल हैवी होगा लिफ्टिंग के लिए, वो मुझे टच देता है, मैं उसको टच देता हूँ, तो वी आर लाइक फ्रेंड्स नाउ। आप उसकी बॉडी अगर देखोगे, ही इज मच बेटर देन मी इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिकल डेवलपमेंट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। उसको मैं हमेशा बोलता बेटा स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, कीप अवे फ्रॉम इट। हेल्दी ईटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वर्क हार्ड इन लाइफ, दैट्स माय मैसेज टू हिम एंड टू ऑल द यंग पीपल इन दिस वर्ल्ड। मेरा और कुछ प्रश्न है, मैं कर सकता हूँ सचिन? बोलो बोलो, बिल्कुल सर। नहीं, चेयरपर्सन से बिल्कुल। पूछ लेना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। हो सकता है ना मैडम? थैंक यू मैडम। अच्छा, सेकंड प्रश्न है कि आप बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। ये स्ट्रोक से बाद हुआ है कि इससे पहले भी था, ये तो हम नहीं जानते, आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं तो बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी बीमारी हुआ है, लाइफ का अप्स एंड डाउन्स मैं भी देखा हूँ। ये कोई प्रोफेशन तो आपको कोई इम्यूनिटी नहीं देता है, सभी को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन है। तो बात है कि आप ये लेक्चर, ये आपका लाइफ का कहानी किसी पीयर ग्रुप को आप बोले हैं, वो सुने हैं, कुछ क्या पूछे हैं? 3 प्रश्न है उसमें। ये ऐसा लेक्चर बोले हैं? ये मैंने एक ही बार मेरा जुपिटर हॉस्पिटल ने वीडियो बनाया है, जो उनके वेबसाइट, उनके यूट्यूब चैनल पे है मेरा ये एक स्पीच। बट अब मैं खुद सोच रहा हूँ फिटनेस बियॉन्ड 40 एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल मुझे शुरू करना है। तो ये सेकंड टाइम, सॉरी, हाँ बोलिए, सॉरी इंटरप्ट नहीं करना। तो फिटनेस बियॉन्ड 40 कैसे लोग कर सकते हैं मेंटेन आज भी? हाँ, आज मुझे स्ट्रोक आके गया है, बट बहुत से टाइम पीपल कैन इंप्रूव और चेंज ऑन इट बिफोर अ स्ट्रोक कम्स इनटू देयर लाइफ, or before they get a heart attack, or before they get any kind of disease ailments. उसके पहले you've crossed 40, but how can you still keep healthy? आज जिस शेप में मैं हूँ, उस शेप में मैं काफी सालों से, मैं 38-40 जब मैं टच किया, बड़ी तोन लेके मैं घूमता था। I had a very unhealthy body. मैं हमेशा सोचता था कि बस क्या कैसे हुआ है, but after I could not. And अब मैं अगली मैराथन जब मैं भागने वाला हूँ, 24 अक्टूबर को एक मैराथन है, तो मेरे साथ जो मेरे हमेशा 3 जो दोस्त मोटिवेट हुए, एक मेरे बुआ का बेटा है जो हॉस्पिटल में मेरे साथ मेरे को देखभाल करने के लिए आता था, वो वाइफ को फैमिली के साथ आता था, वो उसका एक दोस्त जिसके खुद की एंजियोप्लास्टी हुई है, और मेरे बचपन का दोस्त और मेरा बेटा, ये सारे मेरे साथ मैराथन भागते हैं। बहुत अच्छा लाइफ स्टोरी है। ये मेरा मोटिवेशन है, ये सबको जो है काफी मोटिवेट कर चुका है। और मेरे लिए मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो मेरे खुद के न्यूरोलॉजिस्ट थे। मेरे न्यूरोलॉजिस्ट जो है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है, अब बताया ना, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। उन्होंने मुझे एडवाइस किया, बट मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने ज्यादा कुछ बात नहीं की मेरे साथ। उन्होंने मुझे बस लास्ट जो हॉस्पिटलाइज, वो काफी स्ट्रिक्ट थे, मुझे इतना ही बोला, सचिन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई वांट यू टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, नो मोर मेसिंग अराउंड विद योर लाइफ। बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने मुझे ये कहा। और उसके अलावा उनको मैंने देखा, ही इज अ वेल बिल्ट पर्सन। और बाद में एज वी, जैसे हम दोनों फ्रेंड्स हुए अच्छे, मेरे न्यूरोलॉजिस्ट और मैं, तब उनका लाइफस्टाइल कैसे, वो सुबह सुबह 4 बजे वो जिम जाते हैं, उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट, और उसके बाद पहले वो सबसे पहले वो हॉस्पिटल में वार्ड्स में पहले राउंड्स लेते हैं, और फिर जाके ओपीडी में वो बैठते हैं। तो अगर सुबह सुबह आप उनको देखो तो उनके पूरे सारे के सारे बॉडी के उनके वेन्स पंप्ड अप रहते हैं, और वो खुद एक हैवी वेट लिफ्टिंग जिमिंग वाले बंदे हैं। सो ही इज मोर ऑफ अ फ्रेंड, डाइट एडवाइस, ये वो हम लोग एक दूसरे से काफी कुछ शेयर करते हैं। एंड मैंने बहुत दोस्तों से शेयर किया मेरी स्टोरी, और जब भी मैं कोई किसी दोस्त को देखता हूँ अनहेल्दी, मैं उसको अपनी स्टोरी बोलता हूँ। मैं बोला बॉस मैं बच गया, सबको मेरी तरह चांस नहीं मिल सकता है। So this is my main motivational factor that I tell people. जी, बात है कि 1994 जब से इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी से ओपन हो गया, आपका जनरेशन है, हाँ, आप मुझसे, आप 48 है ना, आप मुझसे, मैं 42 सर,
48 हाँ अच्छा तो आप मुझसे यंगर है। तो 94 में जब इंडिया ओपन आउट किया तो आपका जनरेशन ये सब में एकदम हेड ऑन फेस करने पड़े। तो आप तो बताए कि पहले में जो आपका लाइफस्टाइल था बहुत फिट था, हेल्दी था, हाँ, और ठीक ठाक था। कॉलेज टाइम में कॉलेज टाइम में मैं जिम जाता था, बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। फ्लिप कैसे आ गया? What was the turning point that brought all the hazards in your life? माने कि हिंदी में बोलना चाहिए क्योंकि हम हिंदी भाषा भाषी हैं। तो बात है कि क्या बदल गया? हम आपके लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्योंकि आप तो एक तो सिंबल है हमारे यंग जनरेशन, नया जमाना, जो आपका स्टोरी में बहुत जगह सुनते रहता हूँ। तो क्या हुआ? आप इतने अच्छे कंडीशन लाइफ में थे लेकिन हठात करके इतना सारा हैजर्ड्स आ गया। घर से तो कोई खराब इन्फ्लुएंस नहीं आया, घर से तो कुछ बाहर नहीं, से आया देखो होगा। क्या होता है ना, कभी कभी अब आजकल कॉर्पोरेट प्रेशर्स भी इतने बढ़ रहे हैं। बोलिए, तो इसीलिए बोल रहे थे 94 वर्ल्ड प्रेशर्स। तो अब मैंने एक सोच लिया लाइफ में, भले मेरे पास ये चीज नहीं, आईफोन नहीं यूज करता, वो नहीं करता, स्ट्रेस मत लो लाइफ में, डोंट रन बिहाइंड ऑल दोस थिंग्स। मेरा आज जो इन्वेस्टमेंट है मेरे हेल्थ पे है, मेरा जिम का जो मेरा डाइट है उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। फोन मैं अपना नॉर्मल यूज करता हूँ, ओप्पो का जो अपने काम के लिए यूज है। आज लोग जो है ना ज्यादा स्ट्रेस, अल्कोहल, ये सब जो है ना वो ज्यादा एक लाइफस्टाइल, एक शो बन गया है, उससे निकलना जरूरी है आज की तारीख में। तो हमारा जमाना, आपका जमाना वो मैसेज ले पा रहा है छोटा मोटा एक्सीडेंट करने के देखो, बाद? आज की तारीख में क्योंकि आप बता रहे थे कोई एंजियोप्लास्टी भी हो रहा था किसी नया, मेरे एक दोस्त का, वो दारू शारू पीता रहता है, वो स्मोक अभी भी करता है। ये बदल कैसे हो गया? ये लाइफस्टाइल में बदल कैसे आ गया? जब हम लोग जब जॉब शुरू किए थे, अब घर पे क्या था, घर पे डैडी लिमिट में कभी कोई एक दो पैग लेते थे और हम लोगों को लगता था कि बस ठीक है। वर्क लाइफ शुरू होने तो मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया ज्यादा। बट हम लोग जब कंपनी के इवेंट्स में जाते थे, हम लोग के जब कंपनी के पार्टीज होते थे, तब नॉर्मली आफ्टर द सेशन के बाद दे यूज्ड टू बी अ कॉकटेल बार ओपन। बॉस लोग पीते थे, तो बॉस लोग बोले चलो लेट्स हैव अ ड्रिंक, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम लोग भी फिर एक दो पैग से शुरू हो गया। फिर बाद में कोई लोगों में आदत निकल जाती है, कोई लोगों में, मेरे जैसे में रह जाती है आदत। मुझे एडिक्शन लग गया, मैं अपने पैसे से डेली पीने लग गया। कोई लोग बस इवेंट में, पार्टी में एंजॉय करके उसको बाजू में छोड़ देते हैं, बट इट फॉर्म्ड अ हैबिट इन मी। तो वो मेरे लिए गलत बात साबित हुई मेरे लाइफ में। और इसलिए फिर मैंने सोच लिया, अब मुझे स्ट्रोक के बाद, मुझे आफ्टर माय रिकवरी, लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि सचिन को एक दो पैग चालू कर सकता है वापस। मैं सीधा बोल देता हूँ कि बॉस मेरे में कंट्रोल नहीं अपने आप में, सो इट्स अ रॉन्ग विथ मी, माफ कर देना। और मुझे अब मोटिवेशन कोई और चीज में है। जब मैं अपने जिम में खड़ा रहता हूँ तब यंग बच्चे लोग आके पूछते मेरे को, अंकल आपका डाइट क्या है। मेरे बेटे के दोस्त लोग आके पूछते, अंकल मेरा बॉडी वेट इतना है तो मैं कितना प्रोटीन खाऊं दिन में, मैं क्या क्या डाइट लूं, मैं क्या क्या वर्कआउट लूं। वो अगर लोग पूछते ना, दैट्स मोर मोटिवेटिंग टू मी। This question is for Dr. Partha, and of course what based on what Suresh ji just said, is it like he said, Mr. Chandekar said that he's no longer taking blood thinners. So is it required that the blood thinners have to be taken throughout life? Thank you, madam. As a neurologist, I'm questioning you. ठीक है, मैं जरूर जवाब दूंगा। क्या मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ? आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। नहीं, क्योंकि टाइम के लिए मेरा हिंदी उतना जल्दी नहीं होगा। मेरा अंग्रेजी बहुत... You can speak in English as well. So just to explain to you the anticoagulants from what Mr. Sachin was taking, he was taking a anticoagulant which is the newer type, and they were being given after his atrial septal defect repair. He had a hole in his heart, and he had two risk factors for his stroke. One was his hypertension. He had 220 over 180 blood pressure. It should be 130 over 80 at the most. And secondly, he had a hole in his heart, which was possibly throwing off clots, which was going up to his brain. For that, he was given anticoagulants, but after the
hole in the heart was sealed by that operation that he mentioned he had, there was no more scope of that causing any more embolization, we call it, you know. Okay. So there was no more embolization. He does not have atrial fibrillation from what he has mentioned. If he had an irregular heart rhythm, then he would have been a candidate for long-term anticoagulation. Okay. So it is okay after the hole in the heart was closed for him to come off the anticoagulants, because then the problem is not of embolism, but of thrombosis from uncontrolled hypertension, from where he bled. I have not seen his scans, but he had certainly numbness inside his mouth from what he said. And that was basically the start of his brainstem stroke that he had. And then he had a cortical stroke, which led to his weakness down one side. So that's to explain why we do not always start an it depends on what condition you are starting it for. If you have reversed the problem by closing the gap, there is no need to continue anymore, because then there is no question of the clot going from the left heart to the right heart into the lungs and then into the brain. You have closed the additional hole. So that was the one reason. So okay, but a person, a person who had ischemic stroke, without all these complications which you have just mentioned for Mr. Chandekar, but then if the BP and sugar, they are all now being controlled, less of ghee or oily foods are being taken. So even then, we should continue taking blood thinners. Will they affect us in the long run? That's aspirin you're talking about. There are two types of blood thinners. Like Priva Gold is being given to my husband. I don't use company names. Please tell me the chemical name. It's a mix of statin and again, I don't use mix up two drugs in one tablet. It causes immense amount of confusions, and I don't use trade names. Okay, so but this is a combination of two. It has. I see your point. For example, aspirin gold that is Mr. Sachin is taking is a combination of aspirin. Gold, Ecosprin gold is aspirin, and I think atorvastatin only 10 milligrams. Yes. And the right dose, would you believe, is something around 60 to 80 milligrams. So, you know, and we have been talking about it. There is a problem about a lot. I don't want to bring in medical problems to this patient forum. This is not the right place, but a lot of the things, and I'm not saying that India is doing anything wrong. Does it also have no, what I'm asking is whether we can question the doctor about this. Yes, you must. Of course, doctors are there to be answering your questions. Yes, absolutely. And doctors will love it because, you know, it's not a challenge. Not in India. You're asking for clarification. Do your own research. Google is my best friend for my patients. I refer them all to Google, and then they do all the research, and then they come back and ask me. I feel more fulfilled. Sorry, madam, carry on. Okay, sorry. One of my friends, she had a stroke. And she had 2 or 3 clots, and she says after she got discharged and went through physiotherapy and everything, things became normal, and she left off that Ecosprin, having this Ecosprin. She said, I decided to control my diet, my triglycerides, my cholesterol. Anyway, this is becoming a medical consultation. My intention of joining here is to make new friends with my stroke patients. You know, I don't come here as a doctor. I just come here as a partner of stroke prevention and treatment and rehabilitation. So I can, of course, talk to you after the meeting with our chairperson around. I will answer your questions. At the same time, just as Sachin ji ne bhi bola, and I tend to agree with that. See, work-life balance is a critical matter. There are a host of issues in India as against more established countries, although these issues also prevail there to some extent. Maybe I'm sure they prevail more here. At the end of it, as Sachin ji ne bhi bola, it's an individual's responsibility and call. मैं पैसे के पीछे कितना भाग रहा हूँ, for example. True. Or am I prepared to take a deliberate call one fine day? नहीं. It is my life. दूसरे जो करे ना करें, पहले मैं अपने को देखूंगा. Certainly, that is a call जो सचिन जी ने दिया, and for sure he is also setting an example. अब
certainly हो सकता है कुछ लोगों के एग्जाम से अभी भी ना इन्फ्लुएंस हो, जैसे सचिन जी खुद कह रहे हैं, that there are some people who are willing to travel that path of good health, and there are some who are not, but yes, at our end, we can only emphasize repeatedly with a life example, जैसा सचिन जी बोल रहे हैं. And one thing that, of course, with this whole talk, which impressed me also was, the attitude of gratitude. So Sachin ने बोला, having been blessings from God, start your day and end your day with thanking God, with gratitude to God. And of course, food is thy poison, food is thy medicine. मैंने कहीं ये भी पढ़ा था. Very true. So that is your, again, an individual's choice. They can be examples, and healthy diet, healthy living is, of course, is a great step towards. And after that, as Sachin ji said, yes, family support of doctors around, excellent example there also of how everything with God's grace kind of clicked together, came together. So indeed, and of course, after that, individual's own determination. Here is an example. I have been through that. Now I will change. That requires traveling a different path altogether in so many ways. I can imagine, I can understand, being in a corporate environment, the kind of challenges he would have faced, kind of challenges he might be facing even now. It takes indeed, a lot of determination, a tough mindset to go through that. So, Hetal, you wanted to say something? Yeah, you can come in. And yeah. थैंक यू हरदीप जी. मैं जो बोलना चाह रही थी उसमें से काफी चीजें आपने भी शेयर की हैं, तो थैंक यू फॉर दैट. Yes, I believe we have to focus our efforts on stroke and slightly related matters so that we are able to make a substantial difference in this area. And again, I would like to share कि सचिन जी, आपका motivation, आपका जो internal questioning और looking towards the future का जो attitude है, I think that is amazing, and I have definitely learned a lot in this last hour and a half. Thank you so much. कभी-कभी हम कौन से छोटे से छोटी मुश्किलों में भी हम काफी टूट जाते हैं या हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है. तो आई थिंक उन चीजों के लिए, स्पेशली इतनी बड़ी मुसीबत का सामना आपने जब किया है, तो हम इसको याद करके भी काफी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे. आई थिंक आनंदी जी भी ग्रुप पे शेयर कर रही थी कि समटाइम्स मेंटल हेल्थ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड दैट्स अ रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम्स. तो वो भी, this is one aspect of dealing with mental health, is how you reframe your thinking in psychology, जो बोलते हैं. And gratitude helps, looking at what is there versus what is not there, looking at the future versus the past. तो ये सारी चीजें बहुत ही helpful रही सबके लिए. So thank you so much for emphasizing and sharing. And in the future also, we encourage you to continue participating on the group and in future sessions. Definitely. So with that, I would like to end the session. We have already crossed 8:30. Yeah, we've crossed the time. Thank you so much, everyone.